Okay, students. So yes, dear. आप बस एक दो दिन रुक जाओ, आपको सब मिल जाएगा. Finally, I have compiled 11th class complete maths and physics question bank with answers. So you can easily refer those question bank with answers. It would be very helpful. Okay, I'll send you today or maximum by tomorrow. Final test देना है. फिर जो चैप्टर हुए हैं और जो चैप्टर बचे हैं सब हो जाएगा. ठीक है. केमिस्ट्री का भी you will get. Mohit sir has compiled. We will give soft copy and even hard copy. What do you feel? I'll post in your Telegram group. Okay. So मैम लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे? लास्ट क्लास में we studied 4 things. मैं फटाफट आपको बता देता हूँ. See, there is change of state, there is change in temperature. See, when there is change in temperature, we tell about what? Specific heat capacity. Right? When we say change of state means latent heat of fusion for solid to liquid or liquid to solid, and which is latent heat of vaporization for liquid to gas or gas to liquid. देखो जो कल नहीं आए थे, है पेशेंस, आपको आ जाएगा. ज्यादा टफ नहीं था कल, ज्यादा नहीं पढ़ाया मैंने. ठीक है. अब देखो वाटर के स्पेसिफिकली वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है ये भी हमने पढ़ा था. We donate specific heat capacity by S, which is equal to 4200 joule per kg Kelvin. This is SI unit, or 1 calorie per gram degree Celsius CGS. अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हम ले आइस का और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी स्टीम का लें, that is half of water. So either it becomes 2100 joules per kg Kelvin, or it becomes 0.5 calories per gram degree Celsius. Same with steam, 2100 joule per kg Kelvin or 0.5 calories per gram degree Celsius. This is all about specific heat capacity. We then discuss latent heat of fusion. Latent heat of fusion. So when we change from solid to liquid, so ice means latent heat of ice, its value is denoted by latent heat of fusion LF is equal to 336,000 joule per kg, that is SI. CGS is 80 calories per gram. Same with the case of water. If you see water, the latent heat for water is, so not water, steam. The latent heat for steam is, we say latent heat of vaporization. Latent heat of vaporization. किसी को याद है latent heat of vaporization of liquid to steam or vapor? Latent LV is equal to 2256,000 joule per kg, और ये SI है, and CGS is 540 calories per gram. ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा, लेकिन ये टफ नहीं है याद करना. ये वैल्यूज आपको एक बार नोट करके एक जगह चिपका देना और रोज देखते रहना. नथिंग मच डिफिकल्ट. ठीक है. अब हम एक क्वेश्चन करते हैं.
एक क्वेश्चन करते हैं, इससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा, राइट? यू विल कंप्लीटली अंडरस्टैंड। सर प्लीज स्लाइड दिखाना 2 मिनट। यस। सर वो लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में कितना है वो 22 जूल है क्या? 2256 000 2256। ठीक है। यस सर। सर लिक्विड टू गैस होगा ना, वेपराइजेशन। मैंने क्या लिखा है? लिक्विड टू वेपर और गैस। अब ठीक है, चलो ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, इससे पूरा क्लियर हो जाएगा। हाउ मच हीट मस्ट बी एब्जॉर्ब बाय आइस ऑफ मास 720 ग्राम एट -10 डिग्री सेल्सियस टू टेक इट टू द लिक्विड स्टेट एट 15 डिग्री। आई थिंक ये कर लिया हमने। नेक्स्ट करते हैं। यस। फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड इफ 1000 हीट रिलीज नहीं होगा, एब्जॉर्ब होगा। देखो, जब वो आइस से स्टीम बन रहा है, मींस अगर वो सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो हीट एब्जॉर्ब होता है। टेम्परेचर बढ़ता है, स्टेट सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, तो हीट एब्जॉर्ब होता है। और व्हेन वी टेक वाइस वर्सा, मतलब गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, या फिर टेम्परेचर गिरता है, उसमें हीट रिलीज होता है, हीट रिलीज होता है। ओके, फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब इफ 100 gram of ice at -10 degrees Celsius is converted to 120 degrees Celsius 100 gram steam। अब देखो, इसका पहले हीटिंग कर्व बनाते हैं। लेट्स टेक हीटिंग कर्व। ये क्या है मेरा हीट, ये है मेरा टेम्परेचर। इनिशियली टेम्परेचर इज -10 डिग्री सेल्सियस। नाउ आई हीट। जब मैं इसको हीट करूंगा तो टेम्परेचर विल इंक्रीज फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस। Once it becomes 0 degree Celsius, temperature will remain constant till the time there is a change of state. There is a change of, always do we have to make curve? No, आज मैं आपको कुछ और एक्स्ट्रा चीज कर्व में बताने वाला हूँ। देखो, रफ कर्व बनाना इज ऑलवेज हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स आर मूविंग। दिमाग में बना सकते हो, रफली बना सकते हो। सी, दिस इज चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। आइस का 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है, बाकी ऑब्जेक्ट्स का अलग अलग टेम्परेचर पे, राइट? Now, once it becomes completely liquid, again there will be rise in temperature from 0 degree Celsius to 100 degree Celsius. अब 100 degree Celsius में क्या होगा? 100 degree Celsius में again there is change of state from liquid to gas. Again when I heat it, temperature will become what? 120 degree Celsius. So rise in temperature, change of state, rise in temperature, change of state, rise in temperature. तो सपोज उसका इनिशियली हीट 0 था, -10 डिग्री पे मैंने कुछ हीट सप्लाई नहीं किया। अब यहां से यहां तक 0 डिग्री, -10 टू 0 डिग्री सेल्सियस, कंसिडर दिस एज फर्स्ट केस। ठीक है, फिर वो चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है, उसको सेकंड केस लेते हैं। फिर जब फिर राइज इन टेम्परेचर, आई टेक इट एज थर्ड केस। अगेन चेंज ऑफ स्टेट, आई कंसिडर दिस एज फोर्थ केस। अगेन राइज इन टेम्परेचर, आई कंसिडर इट एज फिफ्थ केस। ठीक है, now let's see how to calculate. See, in first case, when I'm going from A to B, heat absorbed will be equal to, I consider Q1, right? A to B case में I consider Q1। हीट को Q से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला क्या है? MS डेल्टा T। M is mass, कितना है? 100 ग्राम। S is specific heat capacity of ice। Specific heat capacity of ice is 0.5। Change in temperature is 10। I am taking in terms of calories। सी, ये ग्राम है, ग्राम में क्या करते हैं हम? कैलोरीज के टर्म्स में लेते हैं, राइट? CGS। क्या होगा आंसर? 50 और वैकेंसी 500 कैलोरीज।
कितनों का आ रहा है समझ में? सर 0.5 कैसे लिया आपने? आइस है ना, आइस इज हाफ ऑफ वाटर, बताया था। Yes, I understand. वाटर का हाफ होता है आइस, स्टीम भी वाटर का हाफ होता है। नहीं आया समझ में? यस सर, आ गया सर। सेकेंड, मैं बी टू सी जा रहा हूं, इधर क्या होगा, मास इनटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। देखो इसमें चेंज ऑफ स्टेट तो होता नहीं है, तो सीधे क्या लेंगे, ml लेंगे, ml लेंगे, राइट। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है आइस का, 80 कैलोरीज पर ग्राम। मैंने आपको शायद यूनिट से लिखाए थे, हाँ 80 कैलोरीज पर ग्राम, राइट। क्या आ जाएगा, 100 ग्राम से 80 को मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा 800, 8000 कैलोरीज। See, we never take negative sign. Change in temperature is negative sign नहीं होता। अब देखो C2D, C2D is what, Q3। C2D will be what, MC, change in temperature। मास क्या होगा, मास 100 ग्राम। 1 स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, डेल्टा T कितना होगा, 0 to 100 कितना हो गया, 100. 10,000 ना, 100 into 100 कैलोरीज। अब D2E, D2E क्या हो रहा है, फिर चेंज इन स्टेट, तो इसमें चेक 4th हीट, Q4 will be what, M into latent heat of vaporization, MLV। LV क्या होता है, LV की वैल्यू क्या है, किसको याद है, 2256 225. मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा आंसर, 225600 कैलोरीज। एंड लास्ट E2F, सर बोलो। सर Q3 में हमने 1 क्यों लिया वहां पर, वो तो स्पेसिफिक क्या हीट नाम है, कैपेसिटी वाटर की 1 SC। होती है, M S delta T। Specific heat capacity of water is 1 when we take in terms of calories। सर पर सॉलिड लिखवाया था सर आपने पर शायद। नहीं, सॉलिड की 0.5, स्टीम की 0.5। अभी मैं ये कौन सा क्या किसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, वाटर का टेम्परेचर बढ़ रहा है ना। सर वो Yes, 225 किलो जूल्स पर केजी है सर, आपने वो सीजीएस वाला ले लिया है। मैंने सीजीएस ही लिया है, अच्छा सॉरी 540 होगा, मैंने ऐसा ही ले लिया ना। यस सर। चैट बॉक्स पढ़ते पढ़ते मैं डाइवर्ट हो जाता हूँ। हाँ आया समझ में, ठीक है, 1 0 कम है, सही है। अब नेक्स्ट E2F, अब देखो किसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये स्टीम का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो मैं किसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लूंगा, स्टीम का लूंगा, यहाँ पे वाटर का लूंगा, जिसका टेम्परेचर बढ़ रहा है उसका ही लूंगा ना मैं। तो क्या हो जाएगा, M 100 स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 0.5 इनटू चेंज इन टेम्परेचर, डेल्टा T कितना है 20, क्या आएगा आंसर फाइनली 1000। सर 200, कैसे, 1000 सर, 1000 सर, मल्टीप्लाई नहीं किया था मैंने 5 से। अब देखो यहां से यहां आने में कितनी हीट लगी मुझे, यहां से ये सपोज 0 था सर हम बोलो, सर हम मैच कैसे देखते हैं, मतलब मैच कब कौन सा लेंगे? भाई ये कौन सा, ये आइस है कि नहीं, आइस -10 to 0 आइस रहता है, वाटर बर्फ रहता है, तो किसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, A to B में किसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, आइस का बढ़ रहा है ना, सर आइस का, तो आइस आइस का का सर। लेंगे, आइस का लेंगे,
C2D में किसका मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है? 0.5 लेंगे इसका। हाँ, C2D में किसका टेम्परेचर बढ़ रहा है? वाटर का, तो 1 लेंगे। C2D में सर वाटर। हाँ, और E2F में किसका बढ़ रहा है? स्टीम का। किसका लेंगे हम? स्टीम का। अरे जिसका सर टेम्परेचर बढ़ स्टीम रहा का। है। हाँ, वैसे ही B2C में सॉलिड लिक्विड बन रहा है, तो क्या लेंगे? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन लेंगे। और D2E में लिक्विड टू गैस, Yes, लेटेंट sir. हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसलिए मैं ग्राफ के थ्रू स्टार्टिंग में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब देखो ये सर वो लिख के देंगे क्या कहाँ पर कौन सा बढ़ रहा है, थोड़ा दिमाग में भी रखना पड़ेगा। कब किसका बढ़ रहा है? अब देखो अगर वाटर आइस दिया है तो आपको पता है 0 डिग्री से कम क्या होगा? आइस रहेगा। 0 to 100 वाटर रहेगा, 100 से ऊपर स्टीम रहेगा। स्टीम रहेगा। बाकी कोई Yes. ऑब्जेक्ट होगा तो उसका देते हैं। वाटर का नहीं देंगे, वाटर का कुछ नहीं देते, इतना ये याद होना चाहिए। कहाँ पे वाटर का स्टेट चेंज हो रहा है, वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है, वाटर का क्या होना चाहिए याद। बाकी का याद करने की जरूरत नहीं है। चले अब देखो ए में कितना इसने हीट एब्जॉर्ब किया, ए में इसने हीट एब्जॉर्ब किया 0। बी पॉइंट तक कितना एब्जॉर्ब हो गया था? बी पॉइंट तक इसका एब्जॉर्ब हो गया था कितना? 500, राइट। फिर उसने और कितना एब्जॉर्ब किया? कितना एब्जॉर्ब किया? 8000। और कितना 8,000. एब्जॉर्ब किया? 1000, 10,000. 10,000। उसके बाद और कितना एब्जॉर्ब किया? 54,000. 54,000। फिर यहां तक और कितना एब्जॉर्ब किया? 1,000. 1000। 1,000. तो देखो इनिशियली इसने कितना हीट एब्जॉर्ब किया था? 0। जब मैं थोड़ा ये पूरा एक ही ऑब्जेक्ट, एक ही सब्सटेंस है, जब मैं A to B गया तो टोटल हीट उसने 500 एब्जॉर्ब कर लिया, राइट। जब मैं B to C आया तो टोटल हीट उसने कितना एब्जॉर्ब कर लिया? 8500। अगर मैं A से देखूं तो टोटल हीट कितना एब्जॉर्ब हो गया है? 8500। और उसने टोटल और कितना हीट एब्जॉर्ब कर लिया यहां तक आने तक? 18500। देखो 1000 तो इतना एब्जॉर्ब है, लेकिन अगर आप Yes, एक्स एक्सिस से sir. ग्राफ लोगे और 0 से ग्राफ लोगे तो 500, फिर 8500, फिर 18500, फिर ये कितना हो जाएगा? 18500 पर 54, 72500। और फिर यहां तक आने तक टोटल कितना हो गया? 73500 कैलोरीज। ग्राम पर कैलोरीज होता है ना हीट। कितनों को ये समझ में आया? हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस कंप्लीटली? सर संकेत, 2 मिनट नोट करने दो सर। आदर्श, आकांक्षा, हृदय, कौस्तुभ, रितेश, समीर, युगांश, वेदांत। गुड। एक्चुअली वेबएक्स में रिकॉर्डिंग करप्ट बहुत फ्रिक्वेंटली होती थी, जूम में नहीं होती थी। पता है जूम में कैसे हो गया इस बार? टेम्पल की साइड ले रहा हमारा। चलो मैं बोल रहा हूँ। चलो स्टूडेंट्स, लेट्स गो अहेड। आपको मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, आप वो क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ। पहले इनिशियली इजी क्वेश्चन दूंगा 10th क्लास की बुक से, उसका पढ़ाऊंगा 12th का। वैसे ये टॉपिक 10th में भी अच्छा है। चलो स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन। टेम्परेचर, heat
So this is a temperature heat curve. ठीक है, heating curve. Okay. Now if mass of this is given in calories. If mass of substance is 45 gram, sorry 40 gram, then find first specific heat capacity of solid, second latent heat of fusion of solid. Specific heat of solid and latent heat of fusion of solid. अब ठीक है, अब देखो O to B, तो ये 0 ले लो, राइट? 0 to B क्या हो रहा है? ये हीटिंग हो रहा है. B to C क्या हो रहा है? चेंज ऑफ स्टेट. अब देखो टोटल हीट सॉलिड को गर्म होने में 0 to 100 डिग्री. अब देखो इस फर्स्ट पार्ट को पहले सॉल्व करते, ठीक है? आई एम सॉल्विंग फर्स्ट पार्ट. मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, लेकिन इसकी वैल्यू निकालने से पहले मुझे सॉल्व करना पड़ेगा. अब देखो चेंज इन टेम्परेचर इज हाउ मच? चेंज इन टेम्परेचर इज 100. मास इज हाउ मच? मास इज 40 ग्राम. मुझे स्पेसिफिक हीट फाइंड करनी है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. हीट कितनी है? हीट कितनी एब्जॉर्ब हुई? हाउ मच हीट इज एब्जॉर्ब फ्रॉम हियर टू हियर? हीट एब्जॉर्ब इज 4000. सर ये सब्लिमेशन का एग्जांपल है क्या? नहीं सर डायरेक्टली 0 to 100 हुआ इसलिए पूछा. अरे ये बर्फ नहीं है भाई. और कोई ऑब्जेक्ट 100 पे मेल्ट हो सकता है? देखो देखो मास ऑफ सब्सटेंस है ना, मास ऑफ वाटर थोड़ी दिया है, आइस नहीं दिया मैंने. आ रहा है समझ में? यस सर. चलो ठीक है. हीट कितना है? 4000 कैलोरीज. चलो इसके अब इसको सॉल्व करते हैं. सर 1 आएगा सर. आ गया 1. वेरी गुड. यूनिट Q इज इक्वल टू ms डेल्टा T. इससे क्या हो जाएगा? Q क्या होगा मेरा? 4000 is equal to 40 into S into delta T is 100. S will be equal to 1 calorie per gram degree Celsius. आया समझ में? यस सर. Latent heat of fusion. अब latent heat of fusion कैसे निकालेंगे? See, state change करने में कितना हीट लग रहा है? How much heat is required to change state? 300, say 3000. So क्या होता है? Q is equal to latent heat into mass. Q कितना है? 3000. latent heat फाइंड करना है. mass कितना है? mass is 40. तो latent heat कितना आ जाएगा? 3000 divided by 40. क्या रहा आंसर? जल्दी बताओ. यस सर 75 आ रहा है सर. 75 आ रहा है. 75 यूनिट Calorie per कैलोरीज ग्राम. ग्राम सेल्सियस. ग्राम सेल्सियस नहीं आता लेटेंट हीट में, स्पेसिफिक में आता है सेल्सियस. कितनों को समझ में आ रही है? हाउ मेनी ऑफ यू आर अंडरस्टैंडिंग? इफ आया प्लीज टाइप 1. जितनों को आया. यस सर. अब जो कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्सचर क्या है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है उस दिन क्लास में. जो कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्सचर क्या होता है? मैं अलग अलग मास डिफरेंट, पहले डिफरेंट सब्सटेंस I mix at different temperature. बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं. ठंडा गर्म पानी मिला दिया, गर्म कटोरे में ठंडा पानी डाल दिया, राइट? फ्रिज को खोल दिया, ठंडा फ्रिज और बाहर वो रूम गर्म है. तो क्या होगा? मिक्सचर मतलब क्या? मैं क्या कर रहा हूँ? दो डिफरेंट टेम्परेचर के सब्सटेंस को ऐड कर रहा हूँ. जब मैं दो डिफरेंट टेम्परेचर के सब्सटेंस को ऐड करता हूँ
तो होता क्या है, एक है हाई टेम्परेचर, एक है लो टेम्परेचर। तो मैं हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर को मिक्स करता हूं तो क्या होगा, एनर्जी विल फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। उस एनर्जी को क्या बोलते हैं हम, उस एनर्जी को हीट बोलते हैं। हीट, हीट फ्लोस, obviously हीट विल एक्सचेंज। कब तक, जब दोनों का, ये जब तक क्या होगा, जब तक दोनों का टेम्परेचर इज नॉट सेम। अच्छा, थर्मोडायनामिक्स, ये 3 एनसीईआरटी के चैप्टर के बराबर है। एनसीईआरटी के देखो, फ्लूइड के बाद जो अगले 3 चैप्टर है वो पूरे में एक में थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा रहा हूँ। उसमें काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस आता है, हीट टेम्परेचर आता है, उसमें वो आता है थर्मोडायनामिक्स कोड, लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स, 0th लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, बड़ा है। ठीक है, कब खत्म होगा, लगेगा दिसंबर लग जाएगा, एंड ऑफ दिसंबर में हो जाएगा। सर एनसीईआरटी का चैप्टर ये भेज दो ना पीडीएफ। हाँ, एनसीईआरटी का मैं भेज दूंगा, ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी पढ़ोगे तो टेंशन में आ जाओगे। चाहिए तो भेज सकता हूँ, रहने दो सर। चलेगा। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन 1, सी if we add hot water of 100 degrees Celsius to cold water of 40 gram at 20 degrees Celsius, if temperature of mixture (35°C), then find mass of hot water. राइट, ठंडी में पानी ठंडा होता है, हम थोड़ा सा हॉट वाटर मिलाते हैं गीजर से, राइट। तो क्या होता है, हमारे को कुछ मॉडरेट वाटर मिलता है, जो अब यूजुअली हम करते हैं सुबह सुबह, राइट। अब ठीक है, मेरे पास हॉट वाटर है 100 डिग्री सेल्सियस पे, और मेरे पास कोल्ड वाटर है 20 डिग्री सेल्सियस। अब जब मैं दोनों को मिक्स करूंगा तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, हॉट वाटर का टेम्परेचर गिरेगा और कोल्ड वाटर का टेम्परेचर ऊपर आएगा। कब तक होगा, एक का टेम्परेचर गिर रहा है, एक का टेम्परेचर उठ रहा है, ये कब तक होगा, जब तक दोनों क्या नहीं हो जाए, किस टेम्परेचर पे आना आता है, इक्विलिब्रियम 35 डिग्री सेल्सियस पे। अब देखो इसका डेल्टा टी कितना है, व्हाट इज डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर फॉर हॉट वाटर इज 65 डिग्री, और यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर कितना है कोल्ड वाटर के लिए 15 डिग्री। देखो चेंज इन टेम्परेचर इज ऑलवेज हायर माइनस लोअर, बड़े से छोटे को माइनस कर दो, तो 100 माइनस 35 इज 60, 35 माइनस 20 इज 50। अब देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगा, व्हाट विल बी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी विल बी व्हाट, वाटर का क्या होगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1, इधर भी क्या होगा 1, मास कितना है मुझे फाइंड करना है, x ले लो, ये मास कितना है 40। अब देखो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मिक्सचर्स, क्या होगा, हीट रिलीज बाय हॉट ऑब्जेक्ट is equal to heat absorbed by cold object।
मैं आपको ये पढ़ा चुका हूँ इंजन के केस में, लास्ट टाइम वो इंजन का कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा था। हीट रिलीज बाय हॉट ऑब्जेक्ट कितना होगा, मास कितना है, x mc delta ms delta t, right? m into s is 1, delta t is how much, delta t is 65 is equal to, ये कितना हो जाएगा मास m 40, s कितना है 1, डेल्टा t कितना है 15, x क्या हो जाएगा 40 into 15 by 65। सॉल्व कर लेते हैं, 5 13 जा 5 3 जा 120 by 13 कितना मास हो जाएगा 9.2 3 ग्राम। कितनों को आया समझ में? सिर्फ प्रिंसिपल ऑफ मिक्सचर्स को एक और नाम बोलते हैं कैलोरीमेट्री। अकॉर्डिंग टू, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मिक्सचर्स ऑल्सो वी कैन राइट एज अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल कैलोरीमेट्री, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री भी यही है। कैलोरीमेट्री क्या है? कैलोरीमेट्री इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्सिंग टू मिक्सचर्स or two or more mixtures so such that one object release heat, other absorbs heat, and finally they come to a equilibrium point. Okay, टाइम कितना बचा है? ओके, आई हैव टाइम। इस टॉपिक को आज खत्म कर देते, राइट? फिर नेक्स्ट में मैं आपको कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन पढ़ाऊंगा और लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यस, 5 मिनट्स कैसे है? या तो मेरी घड़ी गलत है, आपकी गलत है। मेरी घड़ी में तो 15 मिनट बता रहा है। सर 4:13 हुए हैं। हाँ, चलो एक बार आपका सिलेबस हो जाए फिर रोज आपको स्टोरी सुनाऊंगा, ठीक है? ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, सी 10 ग्राम of ice at 0 degree Celsius is added to 10 gram of water at 80 degree Celsius. Calculate the temperature of mixture. Calculate the temperature of mixture. Final temperature. एक मिनट, 100 डिग्री सेल्सियस लिखो।
10 gram of ice at 0 degree Celsius is added to 10 gram of water at 100 degree Celsius. Calculate the final temperature of mixture. मैंने पानी में क्या डाल दिया, बर्फ डाल दिया. अब देखो वाटर गर्म है 100 डिग्री सेल्सियस पे, वाटर का टेम्परेचर क्या होगा, गिरेगा, राइट. आइस है, आइस कितने पे, 0 डिग्री सेल्सियस आइस. अब देखो जब आइस है, जो आइस है वो पहले क्या होगा, मेल्ट होगा. फर्स्ट आइस विल मेल्ट फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस. आफ्टर मेल्टिंग देयर विल बी राइज. सी 0 डिग्री सेल्सियस आइस डायरेक्टली नहीं हो सकती. वी डोंट से 100 डिग्री सेल्सियस आइस, 40 डिग्री सेल्सियस आइस. वी से 0 डिग्री सेल्सियस आइस. सो आइस फर्स्ट मेल्ट, देन देयर इज राइज इन टेम्परेचर. आइस फर्स्ट मेल्ट, देन देयर इज राइज इन टेम्परेचर. वाटर क्या होगा, वाटर का सीधे टेम्परेचर फॉल होगा. फाइनली दे बोथ विल कम एंड मीट एट अ टेम्परेचर which will be something x. I don't know what will be this temperature. I don't know what will be this temperature. Okay, now how we will do this question. अब देखो how much heat is released, sorry absorbed. Now इस portion में क्या होगा, heat is absorbed. Heat is absorbed. Here what is happening here, heat is released. ठीक है. सो मैं कितनी हीट रिलीज हो रही है, कितनी हीट एब्जॉर्ब हो रही है, उससे मैं आंसर निकाल लूंगा. सी दिस इज माय वाटर हैविंग मास इक्वल टू 10 grams. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज 1. चेंज इन टेम्परेचर विल बी 100 माइनस x. दिस इज हीट रिलीज्ड. इससे मैं निकालूंगा हीट रिलीज्ड. तो हीट रिलीज्ड विल बी इक्वल टू ms delta t, which is equal to 10 into 100 minus x. Now who is absorbing heat? Ice. Ice कितना है मेरा, 10 grams, right? 10 into ml, right? Latent heat of fusion क्या होगा, 336. आइस 0 डिग्री पे मेल्ट होता है. आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री है, मेल्ट होगा डायरेक्ट. 0 डिग्री पे डायरेक्ट मेल्ट होगा. सपोज मेरा -10 डिग्री सेल्सियस आइस होता, तो पहले उसका टेम्परेचर बढ़ता 0 डिग्री सेल्सियस तक, फिर मेल्ट होता वो 0 डिग्री सेल्सियस. लेकिन अब वो सीधे 0 डिग्री सेल्सियस पे ही है, तो सीधे मेल्ट होगा. सर 80 कैल लेंगे ना हम, 80 कैलोरी. सॉरी 80 क्या आ गया, ये 80 हो गया. ये राइज इन टेम्परेचर कितना होगा, मास स्पेसिफिक हीट. अब ये वाटर है, राइट. 0 डिग्री वाटर है, फिर टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो 1 लेंगे, राइट. 10 into 1 into x क्या आ गया, 10x. So my heat absorb will be 800 plus 10x. अब देखो heat absorb should be equal to heat release. हीट कितना रिलीज हुआ है, हीट रिलीज इज 100 minus x is equal to 800 plus 10x. क्या आ जाएगा, 1000 minus 10x is equal to 800 plus 10x. कितना हो गया, 1800 plus is equal to 20x. Sorry, not 1800, 200. X is equal to 10 degree Celsius. कितनों को आया ये समझ में? How many understood this? सर ये वाला स्टेप समझाओ ना सर, वाटर टू एक्स का. क्या क्या क्या, वाटर टू, सर ये वाला समझाओ ना स्टेप. ये वाला, ये आपने ब्लू मार्क किया है क्या? अच्छा देखो, 0 डिग्री आइस टू 0 डिग्री वाटर, फिर वाटर के बाद टेम्परेचर राइज होगा, राइट. आइस से वाटर कन्वर्ट हुआ, फिर वाटर से टेम्परेचर राइज हुआ, तो 0 डिग्री सेल्सियस से क्या होगा, ये
x बनेगा, जो भी है फाइनल टेम्परेचर वही मुझे फाइंड करना है। तो ये 100 डिग्री सेल्सियस से x बना, ये पहले मेल्ट हुआ फिर x बना। आया समझ में? यस सर। आया? सर मीन्स आपने 0 माइनस x माइनस 0 किया है ना सर? हाँ, x माइनस 0 x हो गया। ये साक्षी क्या डाउट है? सर मुझे वो आइस टू वाटर नहीं समझा सर इक्वेशन। ये आइसो वाटर, फिर वाटर से हाँ सर पूरा नहीं समझा। देखो फाइनल टेम्परेचर कितना है मेरा, 10 डिग्री सेल्सियस है। अब देखो आइस का मेरी 10 डिग्री सेल्सियस पे डायरेक्ट पहुंचेगा क्या? आपने कभी सुना है 10 डिग्री सेल्सियस आइस? नो सर। तो आइस 0 डिग्री पे पहले मेल्ट होता है, फिर टेम्परेचर वाटर का रेज होता है। तो मेल्ट होने के लिए वो कुछ हीट एब्जॉर्ब करेगा, m into LV, सो LF, मास इनटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। मास कितना है 10, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 80। फिर उसके बाद टेम्परेचर राइज होगा। टेम्परेचर राइज कितना होगा? mc डेल्टा टी, मास 10, s is 1, डेल्टा टी is x माइनस 0। अभी तो वो पता नहीं है 10 है, x माइनस 0 x हो जाएगा 10x। टोटल हीट यहां से यहां पहुंचने में कितनी लगी? 80 प्लस 10x, सॉरी 800 प्लस 10x। दिस हीट एब्जॉर्ब, दिस इज हीट रिलीज। सर आपने एक्स किसको कंसीडर किया है? जो ऊपर टेम्परेचर ऑफ वाले को या मिक्सचर है, फिर टेम्परेचर ऑफ दोनों मिक्सचर, को? फाइनली मिक्सचर का टेम्परेचर तो सेम ही होता है ना, ऊपर से भी वही आएगा, नीचे से भी वही आएगा, दोनों का एक्स ही होगा फाइनल टेम्परेचर। यस सर। मिक्सचर में क्या होता है, फाइनल टेम्परेचर दोनों का सेम हो जाता है। What is latent heat of fusion of ice? Latent heat of fusion of ice is 80 calories per gram or 336,000 joules per kg. This is CGS, this is SI. आ रहा है समझ में? चले आगे, चलो एक और क्वेश्चन। हाँ, एनसीईआरटी में आप देख सकते हो कुछ क्वेश्चंस होंगे, मतलब क्वेश्चंस हो सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो 500 gram of water at 80 degrees Celsius is mixed with 100 gram of steam at 120 degrees Celsius. Find out the final temperature of mixture. कितना टाइम बचा है मेरे पास? I think this will be our last question. Okay. अब इस क्वेश्चन को थोड़ा करने की कोशिश करते हैं। ओके, कैसे करेंगे इसको? One minute. Okay, I'll wait for a minute. सर पिछले बारी की तरह सेम करेंगे, ठीक बस है। वैल्यू चेंज होगी। आप बहुत इंटेलिजेंट हो गए, आप खुद ही अटेंडेंस भेज देते हो। आप में से कोई इनिशिएटिव ले लेता है अटेंडेंस का, बाकी अटेंडेंस भेज देते हैं। गुड।
चले मत जाना, कोई ये भी मत बोल देना क्लासेस ओवर और बाकी घर से चले जाएं, एटलीस्ट वो मुझसे पूछ लेना। कोई लिख दे थैंक यू वेरी मच, बाकी बोले बाय सर, कोई बोले बाय। ठीक है, इसको अब करते हैं। ओके, तो इसको देखते हैं। और देखो स्टीम 120 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, स्टीम नीचे गिरेगा। पहले देखो स्टीम डायरेक्ट नीचे नहीं गिरेगा, पहले क्या होगा, स्टीम क्या होगा पहले 120 डिग्री सेल्सियस से क्या होगा, पहले वो 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम बनेगा, राइट। टेम्परेचर गिरेगा ना, स्टीम लिक्विड कहाँ पे बनता है 100 डिग्री पे, तो यहाँ पे कितना हीट रिलीज करेगा वो, मास कितना है उसका 100 इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ स्टीम 540। टोटल कितना मिला 5400 कैलोरीज। यहां तक आ रहा है समझ में। अब यहाँ पे क्या है, वाटर है, कितने डिग्री सेल्सियस पे वाटर इज एट व्हाट टेम्परेचर, वाटर इज एट 180 डिग्री सेल्सियस। सर बट स्टीम का भी तो वो 20 डिग्री सेल्सियस का चेंज आएगा ना सर उसमें। मैं चेंज इन टेम्परेचर लिखा था, गलती से मैं दूसरा लिख दिया। सर चेंज इन 24 टेम्परेचर, डिग्री यस 122 ms डेल्टा टी, सॉरी m कितना है, m इज 100, s इज 0.5, डेल्टा टी इज 20। अब ठीक है 1000 sir. राइट, 1000 कैलोरीज। चेंज इन टेम्परेचर ऑफ स्टीम फ्रॉम वेयर टू वेयर, फ्रॉम 20 to सर 40 होगा ना सर, कैसे 2000, 0.5 into 40 सर 80 से तो 2000 आ रहा है, 120 1000 आएगा 2000 आएगा। सर मेरा 24 डिग्री सेल्सियस आ रहा है। पे टेम्परेचर बाद में 1000 है, कुछ भी बोलते हो। तो ठीक है, अब उसके बाद आपको 24 आ रहा है, वो देखते हैं। अब देखो वाटर का टेम्परेचर डायरेक्ट राइज होगा, कहां पे आएगा, लेट्स सी, इफ वाटर रीच टू 100 डिग्री, इफ वाटर रीच टू 100 डिग्री कितना लेगा m, मास कितना है 500 इंटू स्पेसिफिक हीट 1 इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी कितना होगा 20, कितना आएगा, मतलब वाटर को 80 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस जाने में कितना हीट चाहिए, 10,000 कैलोरीज। अब इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं, अब ये स्टीम को मेल्ट होने में, मतलब कि एक तो मैं थोड़ा ये इसको मैं फिर से बना रहा हूं, यस अब ठीक बनेगा। 120 डिग्री सेल्सियस स्टीम टू 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम, 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम टू 100 डिग्री सेल्सियस वाटर। अब 100 डिग्री सेल्सियस वाटर बनने में कितना हीट रिलीज कर रहा है, हाउ मच हीट इज इट इज रिलीजिंग टू कन्वर्ट फ्रॉम 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम टू 100 डिग्री सेल्सियस वाटर। इसमें लगेगा ml, राइट। m कितना है 1000, 100 सॉरी, l कितना है 540, कितना कहेगा 5400 कैलोरीज। ये हीट रिलीज हो रहा है और ये हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है। अब आप इसको एनालाइज करो, टोटल हीट अगर मुझे स्टीम को 120 स्टीम को मुझे 100 डिग्री वाटर करना है तो टोटल हीट कितना रिलीज करना पड़ेगा मुझे 655,000 कैलोरीज, और वाटर कितना एब्जॉर्ब करेगा आने के लिए 10,000 कैलोरीज।
अब इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ लग रही है सर, इसमें इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ लग रही है आपको सॉल्यूशन Yes. में? इतना absorb नहीं कर पाएगा ना सर। हाँ, वाटर इतना एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएगा, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा? फाइनल में सब कुछ टीम होगा। सब कुछ स्टीम होगा। यस सर, फाइनल मिक्सचर में। देखो अब आप एक चीज, टाइम हाउ मच आई है? यस, अच्छा 2 मिनट रुको बस। देखो स्टूडेंट्स, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, अगर मैं 0 डिग्री सेल्सियस आइस को मिलाता हूँ और 0 डिग्री सेल्सियस वाटर को मिलाता हूँ तो कुछ हीट एक्सचेंज नहीं होगा। क्यों? देयर इज नो एक्सचेंज। 0 डिग्री सेल्सियस आइस और 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में देयर विल बी नो एक्सचेंज। क्यों? बिकॉज टेम्परेचर डिफरेंस इज 0. देयर इज नो टेम्परेचर डिफरेंस, देयर इज नो टेम्परेचर डिफरेंस। आ रहा है समझ में? अब देखो 120 डिग्री से 100 डिग्री बनने में स्टीम ने 1000 कैलोरीज रिलीज किया, राइट? तो वाटर 1000 एब्जॉर्ब कर लेगा, वाटर 1000 एब्जॉर्ब कर लेगा, तो 80 से कुछ 85 आ जाएगा, 85 या फिर समथिंग लाइक 82। जब स्टीम, अब मेरे पास स्टीम है 100 डिग्री, जब स्टीम वाटर में कन्वर्ट होगा तो जो भी वो हीट रिलीज करेगा वो क्या होगा? ये वाटर एब्जॉर्ब करेगा, वाटर एब्जॉर्ब करेगा, वाटर एब्जॉर्ब करेगा, वाटर एब्जॉर्ब करेगा, 100 डिग्री पे आ जाएगा। नाउ मिक्सचर के पास क्या रहेगा? नाउ माय मिक्सचर विल हैव steam plus water at 100 डिग्री सेल्सियस। अब देखो एक बार वाटर 100 डिग्री पे आ गया फिर वो स्टीम नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि इसको और हीट मिलेगा ही नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? बिकॉज स्टीम का और वाटर का टेम्परेचर सेम है, वाटर का टेम्परेचर सेम है। So final mixture will have steam and water at 100 degree Celsius. कितना को आ रहा है समझ में ये? How many of you are understanding? आ रहा है? आप में से कोई 0 भी नहीं लिखेगा, सोचोगे कि 0 लिखूंगा तो सब 15 मिनट और ले लेंगे मेरे, राइट? ठीक है। So this is what my final mixture. Final mixture will have steam or water at 100 degree. Okay, thank you very much. हम कल करेंगे कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन का कॉन्सेप्ट। मोस्टली फिर आपका लॉस ऑफ थर्मोडायनामिक्स अगली क्लास में पढ़ेंगे, अगर ये एक क्लास में हो जाएगा तो। थैंक यू वेरी मच, वी एंड क्लास है।